Okay, so now we can start. जैसे अब students आते हैं वो join करते जाएंगे. It's okay, fine. So this board is visible to you? Anyone? Yes, sir. Okay, fine. Okay. So in the last lecture session, we have talked about the modular arithmetic. Modular arithmetic, the simple thing, and modular arithmetic, and we have even talked about all the three cases. First case, if any number a is greater than m minus or we can say m minus 1. Second case, if any number minus a mod of m. And third case, the inverse case, that is nothing but a inverse mod of m. So we have talked about all the things about the modular arithmetic. Now we will move to the another basic thing. It is nothing but the Euclidean. Just wait. Euclidean algorithm. All are the basic mathematics we are discussing here because all the things are required or even mandatory for designing any cryptographic algorithm or even understanding any cryptographic algorithm. So basically this Euclidean algorithm is used for determining the GCD. Determining the GCD. Okay, so the general concept of this or general statement we can say, that is according to Euclidean, GCD of a comma b, GCD of two numbers say a comma b is nothing but GCD of b comma a mod b. Now this identity definitely helps to sort out so many problems or even in doing the factoring when we deal with the cryptographic algorithms. And in the definition of GCD, if I'll say definition of GCD, so the mathematical equation, it might be something like this: GCD of AB is nothing but maximizing or maximum of we can say, let's say k, any number, or that will be the factor, you know the thing now, such that k divided by a and k divided by b. So this is the simple mathematical equation, or you can say equation or the formula, whatever, for defining the GCD case. Okay, so there is no need to having the discussion further on GCD. Now I'll tell you the another important thing, that is congruent modulo. Anyone can tell about anything the congruent modulo? Congruent पता है, clear है? Anyone? It is okay. So congruent, if we can say that if there are two numbers, say a and b, and when a mod m equals to b mod m, then we can say a and b are congruent. So a and b are now congruent modulo, and we will write something like this: a congruent b
with mod of m. So this is the simple definition of congruent modulo. Even after this, I have anything, if you want to ask in between, then you may ask anyone, because anyone may unmute yourself. Okay, the another thing that I talked about, the Galois field in the last section, in the last class, sorry, Galois field with P, and P is nothing but prime number. We always define the Galois field in this case, and GF is nothing but the Galois field. Okay, so prime number, you know very well that any number whose factor is itself and 1, then it is prime number. Okay, now I would like to ask one thing. Suppose I'm talking about GF7. तो इसका मतलब ये है that you are having a set of numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you have to deal all the calculations here with mod 7. तो ये तो हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में भी किया हुआ था, तो स्पेसिफिकली इस गैलॉय फील्ड को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ा? इसमें सारे कैलकुलेशंस उसी तरह से होंगे जैसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक में होते हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? कोई बताएगा? देखो, this is the important thing here. Any field related with prime number, then we are calling it a special case of field, that is Galois field. और ऐसा करने से आपको फायदा क्या होता है वो मैं बताता हूं. सपोज फर्स्ट केस है, हम केस 1 लेते हैं. फर्स्ट केस ऑफ GFP, केस ऑफ एनी Galois field of P. अब देखो यहाँ P is 1 or P greater than 1. P may be 1 or P greater than 1. These are the two different cases. तो GFP अगर आप लिखते हैं तो इसका सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सेट ऑफ एलिमेंट्स 0, 1, 2 dot 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 P minus 1. So this is the case. Another case, case 2. Now that is important one, that GF P to the power n. Now here n definitely is any integer. Any integer. तो इस तरीके के केस में GFP to the power n, set of elements, definitely you will write something like this, Zn, and nothing but 0, 1, 2 dot 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 n minus 1. Still you will not find any new thing than the modular arithmetic. वो हम मॉड केस में भी कर रहे थे, बस हमने यहाँ नाम डिफरेंट ले लिया, GFP to the power n something. अब देखो इस प्राइम नंबर के साथ डील करने पर बहुत सारे एडवांटेज है. मैं आई एम टेलिंग टू यू वन सिंपल एडवांटेज, दैट इट इज ऑब्जर्व्ड इन सेकंड केस, इट इज ऑब्जर्व्ड that that any integer or integers in Zn, this set of element Zn, has a multiplicative inverse, multiplicative inverse if and only if that integer is relative prime to n, if and only if the number a is relative prime
to relative prime to n. Now this is one advantage when we deal with the field of prime numbers case. तो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है, हायर ऑर्डर नंबर सिस्टम होता है, देन you can easily find the sub factors and the other things also. So this is the reason कि ये क्यों इतना important है Galois field. Although all the calculations will be done on behalf of the modular, simple modular arithmetic cases. And if I'll tell you that the any polynomial arithmetic simple degree, if degree, let's say any, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, degree let's say n greater than equals to 0, then polynomial say f of x, we may write something like this. It is nothing but an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot dot dot. We may write a1 say x plus a of 0. Now this is the, or in short we may write summation of I equals to 0 to n ai xi. Now how this polynomial thing is related with our cryptographic approach, because here we always talk about, let's say, plain text in bit form always. Okay, so suppose 0 1 1 0 1 2, sorry, not 2, let's say 1. Now wait देखो यहाँ से, this is the LSB and this is MSB. So simply we can make a simple polynomial with this. तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्टली चेक मैं यहाँ वैसे लिख देता हूँ, a0 is 1, a1 is 1, a2 is 0, a3 is 1, a4 is 1 and a5 is 0. So with this we can define a polynomial in this way and then do the calculations, and after that again we can get back our ciphertext or something else in form of this bit pattern. So that's why this modular arithmetic is directly related to the cryptographic approaches, or help for understanding the cryptographic approaches and algorithms. Okay, after that, after it is itna theek hai, because now I am winding up this simple mathematics. It is okay? Anyone? Yes, sir. Okay, fine. Okay, now we have to discuss about the block cipher. Block cipher, और इसी के साथ में after discussing the block cipher in the later lecture sessions, we will discuss about the DES. DES is nothing but data encryption standard. This is very famous technique, even though different versions of DES even are used for authentication purposes and even for hash coding purposes also. Okay, so first block cipher is what? Anyone can tell about the block cipher? मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, किसी को पता है, कोई बताएगा? Okay, it is kind of the encryption decryption technique. Block of plain text you consider example say 64 bits आपने consider किया, then when you will convert into cipher text,
corresponding ciphertext, then that ciphertext again will be a block of the same size, 64 bits. Now this is the important. अगर 64 बिट का आप ब्लॉक लेते हैं प्लेन टेक्स्ट का, देन साइफर टेक्स्ट भी 64 बिट्स का ही होगा, इवन दो की लेंथ may be different from this different ऐसे कर सकते हो, different from 64 bits or it may be equal also. तो की लेंथ हो सकता है डिफरेंट, बट आप ब्लॉक साइफर में एक ब्लॉक लेते हैं प्लेन टेक्स्ट को और कंप्लीट ब्लॉक यू विल जनरेट एट द रिसीविंग एंड, एंड द लेंथ ऑफ दैट ब्लॉक, साइफर टेक्स्ट ब्लॉक, is the same that the length of plain text you have considered. So this is the simple definition of block cipher. Okay, now motivation, if we talk about the motivation, ये बहुत बेसिक है. देखो ब्लॉक साइफर डिस्कस के बाद ही हम DES पर जा पाएंगे, so that's why I am talking about the whole thing. Now when we talk about the motivation, so there are two things. मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाता हूं. देन देयर आर टू थिंग्स, रिवर्सिबल मैपिंग एंड इररिवर्सिबल मैपिंग. सो इट इज रिवर्सिबल मैपिंग and second case is irreversible. Irreversible mapping. अच्छा, किसी को पता है रिवर्सिबल मैपिंग और इररिवर्सिबल मैपिंग का मतलब क्या है? रिवर्सिबल मैपिंग कब बोला जाता है? एनीवन? अरे कुछ तो बात करो यार. वो भी चलिए, ओरिजिनल मैसेज दोबारा हम एक्सट्रैक्ट कर. अच्छा, आपकी आवाज, जिससे ओरिजिनल मैसेज डिक्रिप्ट कर सकें. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अभी डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन का कोई नहीं है. चलो हम डिस्कस करते हैं. रिवर्सिबल मैपिंग का बेसिक मीनिंग है कि यू आर हैविंग द यूनिक पेयर्स of input and output. For example, suppose we are considering n equals to 2. So you know very well that for n equals to 2 total 1 हाँ, आपकी आवाज कट रही है. ओके, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं. Suppose I am writing plain text here, then cipher text. For n equals to 2, that you know very well, there are 4 different combinations that are 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, now if we will replace this 0 0 with 0 1, this is again the cipher text of the plain text. 0 1 we can replace with 1 0, 1 0 we can replace with 1 1, and 1 1 we can replace with 0 0. Now it is called the reversible mapping. Reversible mapping means, if I'll tell you that I will give you the plain text 1 0, and if I'll ask to you the corresponding cipher text pair, then definitely with this chart we can tell that the cipher text of 1 0 is nothing but 1 1. Similarly, if I will give the cipher text to you, that is say 0 0, and I will ask to you that what is the plain text pair regarding this, then from with this chart we can easily say there is no doubt that the 0 0 is related to the say 1 1. Okay, so each plain text each plain text pair is having unique cipher text pair, and each cipher text pair is having unique plain text pair. So this is called reversible. आप reversible, आप अगर आपको input दे दिया जाए तो आप output बता सकते हैं, output दे दिया जाए तो input बता सकते हैं. This is called reversible mapping. Now
when you talk about the irreversible mapping with the same thing, say plain text and ciphertext, again for n equals to 2. Okay, plain text के दोबारा से वही चार combination 0 0 0 1 1 0 1 1. Now suppose ciphertext 0 0 will be converted with 0 1 0 1 with 1 0 and 1 0 with 1 1 and 1 1 से 1 0 again. अगर हमने इस तरीके से कोडिंग कर दिया, then here is the problem. If I'll tell you that if I'll give you the ciphertext, say 1 0, and I will ask to you that what is the corresponding plain text to this one, then someone will say 1 0, ciphertext 1 0, so someone will say, so there are two cases, someone will say 0 1 and somebody will say 1 1. So now this is not a very good approach, क्योंकि आप अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपका पेयरिंग यूनिक नहीं है. सो इसको आप अगर इन शॉर्ट बोलना चाहिए तो यूनिक पेयरिंग भी बोल सकते हैं, यूनिक पेयरिंग. Okay, so this irreversible mapping we do not use for defining the network security approach. This is the simple case of reversible mapping. Okay, so with this concept, suppose if we are considering the reversible mapping case for defining the different logic or the different case, now we will call it the ideal block cipher. Ideal block cipher. ओके, तो आप यहाँ भी इसको भी बोल सकते हैं, ये भी आपने n equals to 2 था, तो this is nothing but case of ideal block ciphering case. Why I am calling it ideal block cipher? Because we are not having any kind of the key, we are not using any kind of the key here, we are simply transforming the different patterns, bit patterns. Now Abhi, if I will ask you, okay, in the previous case, if I will ask you, इसको भूल जाओ अब irreversible mapping को. अब reversible mapping, if I am telling to you that we will consider for designing any cryptographic algorithm, then can anyone tell me the number of transformation, total number of transformation, possible transformation in reversible mapping? Definitely transformation for n equals to 2 case. कोई बताएगा कितने होंगे? Total number of transformation, different unique, obviously reversible है तो unique transformation की बात हो रही. How many possible transformations? हाँ जी, कितने होंगे? देखो ये तो एक तरीके से कर लिया, अब आप एक और तरीके से कर सकते हो, कुछ और लॉजिक ये कि 0 0 को 1 0 से कर दो, 1 0 को 0 0, समथिंग लाइक दिस. तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशंस कितने हुए, थोड़ा सा सोचोगे ना तो पता लग जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है. देखो टोटल नंबर ऑफ 4 कॉम्बिनेशंस है. यस, फाइन. अब पहले के लिए तो 4 कॉम्बिनेशंस कोई भी यूज कर सकता. हाँ जी, 2 की पावर 4 16 टोटल. हाँ ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, 2 की पावर 4 नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गलत बोले आप. देखो हम ऐसे करते हैं, सपोज पहले के लिए 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ 4 लिख लिया. अब सेकंड के लिए कितने अवेलेबल हैं? कोई एक तो फिक्स करना पड़ेगा, तो बच्चे कितने? 3. नाउ अब थर्ड के लिए कितने बचे? 2, और फर्स्ट लास्ट के लिए बचा 1. सो दिस इज काइंड ऑफ द फैक्टोरियल. आपने 2 to the power n तो सही बोला था, बट उसको फैक्टोरियल कर दो.
n factorial. 2 to the power factorial of 2 to the power n. ठीक है. So these are the number of total possible combinations that we are having or available in our reversible case. Sir, n factorial. हाँ जी. Sir, n factorial. आपने 2 to the power n factorial. मैंने 2 to the power n factorial कर दिया. Sir, n factorial होगा आंसर. 4 into 3 into 2. अरे n तो 2 है ना मेरा. अच्छा. ओके सर. ओके. n तो 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 into 1 हो गया केवल. ठीक ओके है सर. सॉरी. हाँ कोई बात नहीं. n2. अच्छा अब हम आगे चलते हैं. तो ये तो बेसिक मोटिवेशन है साइफरिंग का. देखो आपने सिंपल अभी कोई की यूज नहीं किया, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लॉजिक यूज नहीं किया, सिंपल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से ब्लॉक 2 बिट के ब्लॉक को 2 बिट के साइफर टेक्स्ट में बदल दिया. सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट द आइडियल ब्लॉक साइफर. ठीक है. अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विथ आइडियल और ड्रॉबैक्स वी कैन से. देखो ये इट इज बिट इंटरेस्टिंग केस. ड्रॉबैक्स ऑफ आइडियल ब्लॉक साइफर. देखो फर्स्ट केस, तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या हो सकता है, स्मॉल ब्लॉक साइज. स्मॉल ब्लॉक साइज से n इक्वल्स टू 4. 2 तो बहुत ही छोटा हो जाएगा. अगर हम n इक्वल्स टू 4 लेते हैं तब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 raised to the power 4. प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूं. ठीक है, से प्लेन टेक्स्ट कॉम्बिनेशन 2 raised to the power 4 16. अब इतने कम कॉम्बिनेशंस के साथ में ये इट इज वेरी, दिस काइंड ऑफ द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर. ये किसके इक्वल कर मान सकते हैं हम, जो अभी सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स प्रीवियस क्लासेस में देखा था, क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स. तो ये कुछ उसके तरीके से हो जाएगा. तो इसमें और फिर उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं. और क्लासिकल जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स हैं they are easily vulnerable to statistical analysis. वो किसी भी तरीके से, आप प्लेन टेक्स्ट के बारे में क्रिप्ट एनालिस्ट, मैं यहाँ लिख देता हूं, क्रिप्ट एनालिस्ट में इजीली decipher और समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो इसलिए आप स्मॉल साइज लेकर के इस तरीके से चलोगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो फिर ओल्ड फैशन आपका जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है उसकी तरह ही बिहेव करेगा. अच्छा अब हम करते हैं कि इसकी की साइज, सेकंड केस लेते हैं. अभी तक मैंने की के लिए यहाँ डिस्कस नहीं किया है. सेकंड केस, सपोज आपने, तो मैं यहाँ ड्रॉबैक पहले लिख देता हूं, रिलेटेड टू की साइज. रिलेटेड टू की साइज. देखो पहला तो क्लियर है कि बहुत छोटा n रखने पर वो इतना आसान नहीं बनेगा, वो फिर इजीली डिटेक्टेबल है. अच्छा अब की साइज के लिए सपोज आपने n की वैल्यू कोई लार्ज नंबर, लेट से n इक्वल्स टू 64 बिट्स ले लिया. ठीक है. तो देखो आपके पास प्लेन टेक्स्ट पेयर कितने होंगे, 2 raised to the power 64. Am I right? ठीक है ना, आया ना. Yes sir. हाँ ठीक है. और साइफर टेक्स्ट भी कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 2 to the power 64, सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. अब जब हम की बात करते हैं इस आइडियल ब्लॉक साइफर में, मैं यहाँ सेपरेटली लिख देता हूं, चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं. इन आइडियल ब्लॉक साइफर, key is nothing but the key को मत लिखो, cipher, the mapping itself
constitutes the key। जो आप मैपिंग करते हैं वही आपकी की बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 4 सपोज, तो आपका रिक्वायर्ड की लेंथ गैस करोगे थोड़ा कि कितना होगा की लेंथ ऑफ की n इक्वल्स टू 4 के लिए, क्योंकि जो भी मैपिंग है, अच्छा चलो मैं बताता हूं। तो द रिक्वायर्ड की लेंथ फॉर n इक्वल्स टू 4 इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बिट्स into 16 रोज। अभी इसकी मैपिंग देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ 64 बिट्स का बिट्स की हो गया। अभी इसको मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, देखो ये विजिबल है, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट। यस सर। ओके, n इक्वल्स टू 4 के लिए दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। यस। और मैंने एक सिंपल लॉजिक ये किया है कि नेक्स्ट वाले जो कॉम्बिनेशन है उसको पहले वाले का साइफर टेक्स्ट बना दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आप चाहे तो इवन चेक कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ उठाकर रख दिया और एक एक स्टेप में शिफ्ट करता गया। सो नाउ दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ, और वो भी एक तरीके का लॉजिक लगाया है यहाँ पर। अब देखो, हमने जब n इक्वल्स टू की लेंथ यहाँ पर कंसीडर करेंगे, की लेंथ, क्योंकि स्पेसिफिकली आप कोई की यूज नहीं कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर जितनी मैपिंग के अकॉर्डिंग उसी को ही आप की कंसीडर कर ले रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ की यहाँ पर क्या होगा, 4 बिट्स, क्योंकि 4 बिट का कॉम्बिनेशन है, इनटू 16. How many rows are there? 16 rows are there. So 16 rows. Okay. So this is nothing but 64. Just wait. 64 bits. अब आप खुद से सोचो कि n इक्वल्स टू 4 प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के लिए रिक्वायर्ड है आपको 64 बिट लेंथ की, बिट्स की लेंथ। ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं कंसीडर की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगा? क्योंकि अगर सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए, सपोज इफ से n इक्वल्स टू 64, ठीक है, तब आपका की लेंथ क्या होगा? देखो एक जनरल केस बताओ अब मुझे, की लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n into 2 raised to the power n. n into 2 raised to the power n, मतलब 64 into 2 raised to the power 64, and this is nearly, ये मैंने पहले ही देख लिया, इसलिए ऐसे मत समझना कि मेरे को होगा, तो लिख लिया था मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इट इज नियरली इक्वल्स टू 2 raised to the power 70। अब ये इट इज वेरी ह्यूज नंबर, वेरी ह्यूज लार्ज नंबर। तो आप 64 बिट के ब्लॉक के लिए आपको पहले इतना तो पहले ये की लेंथ बना के रखना पड़ेगा, कहीं कंसीडर करोगे, कहीं तो कंसीडर करोगे तभी तो लॉजिक लगा पाओगे। तो ये तो पॉसिबल और प्रैक्टिकल केस नहीं हुआ, और क्योंकि आप 4 बिट के लिए ही आपको 64 बिट्स का की लेंथ लग रहा है, तो इतना तो ये अननेसेसरी
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक। तो इसलिए आइडियल ब्लॉक साइफर, आइडियल क्यों बोला, बिकॉज यहाँ आपने कुछ लॉजिक कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन किया एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ। अब मैं वापस से अपने इस स्लाइड पर आ जाता हूँ, सॉरी इस स्लाइड पर। तो ये 64 बिट्स की आ गया। अभी हमने देख लिया कि 64 अगर n इक्वल्स टू 64 है तब की लेंथ वो भी देख लिया कि will be 2 raised to the power 70. Now this is these are the two basic drawbacks, these two. Now how we can overcome with this? So अब definitely we have to apply some kind of the logic ताकि हम की लेंथ को भी कम कर सके और हमारा एल्गोरिदम भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। यही रीजन है कि आप की डिफरेंटली सेपरेटली कुछ अलग पैटर्न लेते हैं प्लेन टेक्स्ट से, देन साइफर टेक्स्ट जनरेट किया जाता है। तो उसके लिए शैनन ने 2 मेथड्स और फंक्शंस यू कैन से आपको हमें मींस डिस्कस किए थे। वन इज डिफ्यूजन एंड सेकंड इज कंफ्यूजन। देखो अगर मैं फिर से आपको एक चीज बिफोर स्टार्टिंग दीज टू थिंग्स फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मैं DES की बात करता हूं, DES इसमें जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होता है आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वो 64 बिट्स का होता है, ठीक है। बट की साइज समटाइम्स 58 बिट्स लेते हैं और इवन 64 भी ले सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि लॉजिक यूज करने से आपका की साइज कितना रिड्यूस हो गया। अब इसी चीज को अगर आइडियल ब्लॉक साइफर से देखोगे, ब्लॉक्स अगर आप आइडियल ब्लॉक साइफर ही अप्लाई करते तब प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का है तो आपका की साइज अभी कैलकुलेट किया था 64 into 2 raised to the power 64। नाउ दिस इज शॉकिंग केस। तो ये फिजिबल प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच फिर इसको कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये कंसीडरेबल लेंथ साइज है की का, क्योंकि साइफर टेक्स्ट तो 64 बिट्स का ही जनरेट होगा। तो अब ये हुआ कैसे? दिस थिंग वाज made possible with the help of these two functions, diffusion and confusion, जो कि शैनन ने दिए थे। मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में और उसको लिटरेचर नहीं बता रहा हूँ। डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग बताता हूँ है क्या, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ डिफ्यूजन इन केस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ओके, सो डिफ्यूजन इज नथिंग but we can say each ciphertext digit be affected by many plain text bit, by many plain text digit। अगर हम ऐसा करने में सक्सेस लेते हैं कि आप सपोज एग्जांपल के तौर पर प्लेन टेक्स्ट आपका सपोज है 10111, ठीक है। तो ये जो साइफर टेक्स्ट भी आपका कितने 1 2 3 4 5 बिट्स का ही होगा। बट सपोज ये जो फर्स्ट केस है, अगर मैं इसमें कुछ इस तरीके का लॉजिक कर देता हूं कि बिट 1 एक्सोरिंग बिट 2 एक्सोरिंग बिट 3 समथिंग लाइक दिस, उसी तरीके से सभी में कुछ लॉजिक लगा दिए। तो देखो आपने क्या किया, साइफर टेक्स्ट का ये जो बिट है वो कितनी प्लेन टेक्स्ट बिट पर डिपेंड करने लगा, 3 पर। अगर आप चाहे तो 4 5 सभी बिट्स पर कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपने डिफ्यूजन कर दिया रैंडमली दूसरे के लिए, बट आपने कुछ लॉजिक के साथ कर दिया, तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज
second concept is nothing but, sorry, second concept is confusion. अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं डिफ्यूजन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल से। हमारे पास प्लेन टेक्स्ट डिजिट सपोज है, लेट्स से M1 कैपिटल M इक्वल्स टू M1, जैसे लेटर्स थे M2 डॉट डॉट डॉट। अब आपने साइफर टेक्स्ट जो जनरेट करते हैं, देन इट इज समथिंग लाइक दिस, समेशन I इक्वल्स टू 1 to K, okay, up to length of key, then M n plus I। अब आपने यहाँ n plus I कर दिया, आप चाहो तो n minus I कर दीजिए या कुछ और कर दीजिए, लॉजिक आपके ऊपर है, ठीक है। मॉड ऑफ 26, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द एग्जाम्पल। अब इसका एक एग्जाम्पल बताओगे जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है, ये किया है हमने। अफाइन साइफर भी कंसीडर कर सकते हो और सिंपल सीजर साइफर भी ले सकते हो। तो उस तरीके से डिफ्यूजन किया था। अब जितना ज्यादा डिफ्यूजन करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एल्गो बनेगा। अब कंफ्यूजन में क्या होता है, सो इसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूं, दैट इट सीक्स टू मेक द रिलेशनशिप, देखो पूरा नहीं लिखते, रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड की। मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, साइफर टेक्स्ट एंड की कॉम्प्लेक्स। अब आप साइफर टेक्स्ट और की के बीच के रिलेशन को जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग बनेगी और आपको की साइज ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप कम साइज का ही यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सब करना पड़ेगा। तो confusion is related to strong complex relationship between ciphertext and key pairs. Diffusion is related to more number of bits, ciphertext bits. We can say ciphertext bits will be affected from the more number of plain text bits. So this is the simple definition of diffusion and confusion. It is okay because time भी अब शायद हो गया है। हाँ, it is fine. जी सर। ओके, सो अब आप बुक में चाहे कहीं भी पढ़ेंगे ये डिफ्यूजन कंफ्यूजन के लिए आपको बहुत सारा कुछ दुनिया भर की बात है उसमें लिखी मिल जाएंगी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। डिफ्यूजन रिलेटेड टू साइफर टेक्स्ट मस्ट बी अफेक्टेड फ्रॉम मेनी प्लेन टेक्स्ट बिट्स। कंफ्यूजन इज नथिंग बट रिलेशन, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड की। और जब आप ये दोनों को एफिशिएंटली अप्लाई करते हैं, डिफ्यूजन कंफ्यूजन को, और एल्गो डिजाइन करते हैं, तब आप क्रिप्ट एनालिस्ट को कंफ्यूज करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं कि आपका एल्गो इजीली डिटेक्ट ना हो पाए। सो दिस इज द बेसिक थिंग। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ द DES और वी विल स्टार्ट इवन DES. इज इट ओके? यस सर। ओके ओके फाइन। सो नाउ टाइम इज रनिंग आउट, तो मैं अभी इसको क्लोज एंड कर रहा हूं मीटिंग को। स्टॉप शेयरिंग नाउ। एनीवन इज